Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey have signed a new defense agreement that stipulates that an armed attack on any one of them will be treated as an attack on all. But what does this new strategic alignment really mean? And more importantly, what does it mean for India? To understand its implications, we are joined by our experts, Major Amit Bansal ji and Tariq Faridi ji. Welcome, sir. Thank you. Thank you. So first thing first, what is this agreement all about? And what are the three sectors, if I ask you, three main sectors of this trilateral relationship? Okay, I would like to answer that. First of all, when they formed this agreement, it is on the three pillars. First is the collective mutual defense, Yes. which says that any of the countries attacked, other two countries will have to respond and they'll be standing by the country who has been attacked. So there's a kind of collective mutual defense, something sort of a NATO. The second talks about the defense industrial cooperation, which is already going on. See, in a nutshell, when you talk about the defense industrial cooperation between Turkey and Pakistan, it's already going on. So it is something which is an added to an agreement where their industries and their defense sectors, they'll collaborate with each other to produce the new military hardware, to produce the new technology, all those things. And third is the operational collaboration and the intelligence sharing. So this third aspect is also happening. See, when you talk about Pakistani army has already been deployed into Saudi for a long time. Correct. When Saudi Great Mosque was attacked, then so who responded? It was Pakistani commandos who stormed the in 70s. Yes. in 70s, the Great Mosque. So Pakistan and Saudi have already got a greater level of military cooperation. They've already been sharing the intelligence for long. Even the Turkey has been sharing the intelligence and operations. So rest 2 points have already been in practice for long. And now when we talk about the mutual defense, so that is a point which is something sort of a NATO, but it doesn't have a structure as of now. Okay. But kya zarurat thi? What was the need? Why these three countries came together to sign this agreement, sir? See, if you are looking at it, Pakistan has turned out to be the biggest beneficiary of this war. आप शुरू से देखें उसको, जब से ये जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस पूरी जंग में. उसका कुछ भी स्टेक पे नहीं है. सऊदी अरेबिया से उसको दौलत मिलेगी, पैसे मिलेंगे. जब भी उसको पैसों की ज़रूरत होती है, ही गोज़ टू सऊदी अरेबिया. अभी भी पैसे लेकर आया है. टर्की से उसको अभी, जब हमने पिछले साल देखा, जब जंग हुई हमारी ऑपरेशन सिंदूर, तब भी टर्किश टेक्नोलॉजी, उनके ड्रोन्स हमने वहाँ देखे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस क्राइसिस एक्चुअली. पाकिस्तान के साथ अच्छी चीज़ ये है कि वो सबकी गोद में बैठना चाहता है. सबका ब्लू वाइट बेबी बनता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो. यूएई से इधर उसकी थोड़ी खटपट हो गई, और उसमें हमारी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की, उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया था. बट पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस नेटो कह लीजिए इसको, या जो भी कह लीजिए. Under this agreement, what would actually define that this is an armed attack and इसमें collectively हमें respond करना है under this agreement? हम जब पूरे एग्रीमेंट को पढ़ते हैं डिटेल में, तो अभी तक ना तो उन्होंने किसी आर्म्ड अटैक को क्लासिफाई किया है, ना आर्म्ड अटैक का कोई थ्रेशोल्ड बताया कि किस लेवल का थ्रेशोल्ड आर्म्ड अटैक होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नाटो का जो आर्टिकल 5 है, वो बहुत क्लैरिफाई करता है हर तरह से कि इस तरह से अटैक होगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये अटैक होगा तो ये कंट्री रिस्पॉन्ड करेगा, और ये हमारी यूनिट्स रिस्पॉन्ड करेंगी. विद एवरी एरिया स्पेसिफिक दे हैव गॉट डिफरेंट नाटो कमांडर्स. अब यहाँ पर कोई इस तरह का कमांडर नहीं है, तो अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स किस सिचुएशन में होगा, किस आर्म्ड अटैक को आप आर्म्ड अटैक मानेंगे, किस कंट्री के आर्म्ड अटैक के अगेंस्ट आप होस्टाइल होंगे. सपोज अगर अमेरिका ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या सऊदी और टर्की उसके अगेंस्ट आएंगे? नहीं आएंगे. तो ये अपने बहुत सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब के बावजूद अगर आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स करते भी हैं, चलिए किसी फॉरन से इंडिया ने अटैक किया और तीनों कंट्रीज हमारे अगेंस्ट हो गए, तो उस कलेक्टिव रिस्पॉन्स को लीड कौन करेगा, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है. अभी तक केवल ये एक पेपर एग्रीमेंट है. कलेक्टिव म्यूचुअल डिफेंस की बात हम बात करते हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक स्ट्रक्चर या आधार कोई नहीं है, नो बेस. So does this actually mark the birth of Islamic NATO? It's too early to say. Why you say so? Why? Because see, it's not Islamic. When you call this NATO as Islamic NATO, so the entire Muslim world is divided into two parts. The one is Shia and one is Sunni. Right now, the Western narrative is this is Sunni alliance. Yes. The problem with this NATO alliance is, जब इसमें कतर आएगा, जब इसमें बहरीन आएगा, जब इसमें इजिप्ट आएगा, क्योंकि इजिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो उनका आर्टिकल 5 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इट सेज कि आप किसी दूसरी कंट्री पे जाकर अटैक नहीं कर सकते. सो इफ
इजिप्ट कम्स टू दिस अलायंस, तो सबसे पहले उनको ये आर्टिकल से बाहर होना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, सो दैट अगर जैसे नेटो का जो पॉलिसीज़ हैं वो यही है कि भाई अगर किसी नेटो कंट्री पे, किसी अलायंस पे अगर अटैक होता है तो वो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा। तो पहले तो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। सो अभी इसमें बहुत कुछ होना है। इसको अभी इस्लामिक नेटो कहना या सुन्नी या शिया नेटो कहना बहुत मुश्किल होगा अभी। इट्स टू अर्ली टू से। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स और 10 ईयर्स बैक एक ऐसा ही इस्लामिक मिलिट्री कॉपरेशन बनाया गया था, और इसमें तो कभी इन दिस कॉपरेशन तो ओनली टर्की एंड सऊदी एंड पाकिस्तान आर सिग्नेटरीज, बट इन दैट द मेजॉरिटी ऑफ द गल्फ कंट्रीज वर सिग्नेटरीज। दे इवन मेड इस्लामिक मिलिट्री कॉपरेशन। उसका हेड इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ को बनाया था, एंड राहिल शरीफ सेट इन जेद्दा फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो उसका हेडक्वार्टर बनाकर काफी दिन बैठे वहां पर, लेकिन वेयर इज दैट कोलैबोरेशन नाउ, वेयर इज दैट कॉपरेशन, वेयर इज दैट सो कॉल्ड नाटो नाउ? वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि बाकी लोग उसमें कोलैबोरेट नहीं कर पाए। सो सिमिलरली इसका भी फ्यूचर क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। इट्स टू अर्ली टू से। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम 1951। ओके। आप अगर पूरे मिडल ईस्ट को अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1951 व्हेन मोहम्मद मुसद्दिक वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ ईरान। ओके। उस वक्त जो ब्रिटिश कंट्री थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो ईरान के तेल पे उनका कब्जा था। मुसद्दिक ने पहला काम ये किया कि ऑयल को उसने नेशनलाइज कर दिया। वो ब्रिटिशर्स को नहीं हजम हुआ, वो पहुंचे अमेरिका के पास कि बॉस हमारा तेल तो ये ले गया। अब CIA ने और MI6 ने मिलकर पहले मुसद्दिक को वहाँ से हटाया। रज़ा शाह पहलवी को वहाँ एक पपेट गवर्नमेंट के तौर पर बिठाया गया। ये चला 1979 तक, बिफोर टिल ईरानियन और इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो ये 1951 से ये पूरा चल रहा है कि किस तरह से मिडल ईस्ट पे अमेरिका जाकर बैठेगा। तो ये जो अभी जो नेटो का जो अलायंस बन रहा है, ये एक्चुअली अमेरिका के उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने को, ब्रेक करने के लिए हुआ है। तो अभी से बहुत कंट्रीज आएंगी। आपको लगता है that US has been one of the factors Yes, of definitely. these US is one of the countries factors. to come US is together? one of the major factor, the most Yeah. major important factor for this. और सेकंड थिंग जो इजराइल को भी डर था वो यही था कि अगर सऊदी अरेबिया को उसने अपने साइड नहीं किया तो उसका जो ग्रेटर इजराइल का जो पूरा प्लान है वो खत्म हो जाएगा। Okay. एक्चुअली अभी जो ये पूरा इशू हुआ है वो ये हुआ है कि अभी 15-20 दिन पहले अमेरिका ने US को प्रेशराइज किया था अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने के लिए। Yes. सो ये पूरा इशू वहाँ से शुरू हुआ। इजराइल से स्टेटमेंट आता है कि सऊदी अरेबिया को हम अपने दोस्त की तरह देखते हैं। अब ये कहना इजराइल का, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आया कि अगर सऊदी अरेबिया का फिर से अलायंस बनता है US और इजराइल के साथ, तो पाकिस्तान फिर से आइसोलेटेड हो जाएगा, जो उसने पिछले 6 महीने में कोशिश की है अमेरिका का ब्लू आइड बेबी बनने का। एक किस्म से उसका खत्म। तो ये जो अभी नेटो अलायंस कह लीजिए या उसको आप इस्लामिक अलायंस कह लीजिए, ये एक्चुअली अब्राहम अकॉर्ड्स का उसको निगेट करने के लिए ये बनाया गया है अभी। इसमें वो लोग आएंगे जो अब्राहम अकॉर्ड्स को अब तक अपोज करते आए थे। तो धीरे धीरे वो लोग जो अमेरिका को नहीं चाहते उनके बेसिस मिडल ईस्ट में हों, तो ये बेसिकली उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अलायंस बन रहा है। But what will change in the battlefield with this agreement? See, battlefield is not yet been laid. A lot of activities have to happen after this accord. There has to be a framework, there has to be a rule, there has to be a charter, there has to be a complete so-called a constitution of this organization, how it will perform, who will be the leader, who will be the stakeholder, how will the deployment take place. So until you have these kind of things in place, you cannot lay down the battlefield. How complementary are these capabilities and which country is likely to exercise the greatest strategic influence here? See, there are certain points. This alliance means the wealth of Saudi Arabian oil, technology of Turkey, and there is a soft umbrella of nuclear weapon of the only Muslim country in the world, that is Pakistan. Pakistan. So ये अलायंस बेसिकली ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। अब इसमें होगा ये कि आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए, अगर ईरान अटैक करता है सऊदी अरेबिया पे, जो नहीं होगा, बट जस्ट इन केस अगर ईरान डायरेक्ट अटैक करता है सऊदी अरेबिया पे, तो क्या पाकिस्तान आके लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, राइट? जैसा अभी अमित सर ने कहा कि अगर अमेरिका अटैक करता है पाकिस्तान पे, तो क्या सो ये होगा नहीं एक्चुअली। ये जैसे इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि अभी पेपर टाइगर है ये। जी जी। दिस इज कॉल्ड पेपर टाइगर। अभी ये सब सिर्फ फ़ायदा इसमें हो रहा है। ऑलरेडी टर्की जो है अपनी टेक्नोलॉजी 65 कंट्रीज़ में, कितने आई थिंक 65-67 मोर देन 65 कंट्रीज़ में वो अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन्स का 60 to 65% जो है वो सप्लाई करता है टर्की। उसका अपना काम चल रहा है।
सऊदी अरेबिया को तेल को लेके अभी हॉर्मूज का जो ब्लॉकेड है वहाँ से उसको नुकसान हो रहा है, सो वो ट्राई कर रहा है कुछ ऐसा क्रिएट करने का, चूँकि ईरान और पाकिस्तान में ठीक बनती है, तो सऊदी अरेबिया ये प्रेशराइज करेगा थ्रू पाकिस्तान कि बॉस थोड़ा कुछ करो इधर ताकि मैं अपना तेल सप्लाई यहाँ से जारी रखूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएस है वो बैकआउट कर चुका है। करेक्ट। ट्रम्प चाहे जितना भी कह लें कि हमने जीत लिया है, हमने बारूदी सुरंगें हटा दी, तो कुछ होने वाला नहीं है। सो एक्चुअली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए लाया कि चूंकि वो सबके गुड बुक्स में है तो हिल मैनेज। So would these countries need a permanent joint command, shared intelligence and systems and common rules of, As I told you, a lot of things are required now. engagement? But who will make them? Who will form them? कौन बनाएगा, कौन स्ट्रक्चर करेगा? Although Saudi is a rich country, but why will Saudi only spend in that? सऊदी भी सवाल करेगा ना, भी मैं क्यों खाली मैं ही क्यों खर्च करूं, आप भी खर्चा करो। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो मिलिट्री बेस बना सके, खर्चा कर सके? नहीं कर सकता। क्या टर्की इस पोजीशन में है कि वो मिलिट्री बेस बना सके, खर्चा कर सके? नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपका थ्रेट क्या है? नाटो से अगर आप कंपेयर करते हैं तो नाटो के सामने आपका थ्रेट था रशियन फेडरेशन, करेक्ट, बट अभी हु इज अ थ्रेट? इनका कॉमन दुश्मन भी नहीं है। कॉमन दुश्मन भी नहीं है। कॉमन दुश्मन नहीं है। ये बेसिकली पेपर पर एग्रीमेंट बना लिया गया है कि भाई चलिए हम लोगों को डराते हैं, लोगों को कहते हैं कि हमारा बन गया है, और साथ में कुछ और इस्लामिक कंट्रीज को इस अलायंस में लेकर के आएंगे, जिसको डर दिखा करके टर्की अपने ड्रोन्स बेचेगा, पाकिस्तान अपनी बाकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचेगा लाइक JF-17 वगैरह, और सऊदी उनको अपना ऑयल बेचेगा। तो अल्टीमेटली तीनों कंट्रीज फाइनेंशियली बेनिफिटेड होंगे, और बाकी जो सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज उनको आप छोटा सा एक इस्लामिक उम्मा का एक पपलू पकड़ा देंगे और अपना माल बेच करके उल्लू सीधा करेंगे। Is it possible that either country credibly invoke Pakistan's nuclear capability during a conflict? No, Pakistan nuclear capability is a deterrent. Now, अभी तक as of now, who is wielding this deterrent is only Pakistan. आज इसको इस न्यूक्लियर बॉम्ब को झुंझुना है, उसको कौन हिलाता है? केवल पाकिस्तान हिलाता है। Now, वो वैसे ही with this agreement, these countries will also, countries who are part of this so-called Islamic NATO, they will also get access to this झुंझुना। वो भी कहेंगे ठीक है भाई, टर्की कहेगा मेरे पास तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरा तो एग्रीमेंट है, आप मेरे पर न्यूक मारोगे तो मैं भी पाकिस्तान से लेकर के आपके पास कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव एन एग्रीमेंट। तो इट इज गिविंग दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियर झुंझुना, access of this nuclear झुंझुना to everybody, not the nuclear weapons. So now you Nuclear understand deterrent. why Israel opposed कि अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर सऊदी अरेबिया को दी। दैट्स वाई। सो इन 60s पाकिस्तान यूएस ने ही ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था एज अ फ्रेंडली जेस्चर। जब रजा शाह पहलवी को वहाँ बनाया सरकार दी उसके हाथ में, तो 60s में ही यूएस ने न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था, जिसके लिए आज पूरा हंगामा हो रहा है, जंगे हो रही है। इसीलिए इजराइल हमेशा ये कहता था कि एक तो ईरान हमारे लिए ख़तरा है, अब तुम सऊदी अरब को भी दे दोगे, अभी तो एनर्जी के नाम पे दोगे, ठीक है, फिर वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट में घुसेंगे, फिर हमारे लिए ईरान के साथ साथ एक और मुश्किल खड़ी होगी। इसलिए सबसे पहले जो अपोज किया था वो अपोज किया था इजराइल ने, और अब पाकिस्तान के इस ग्रुप में ना सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा जो डर है वो इजराइल का है। तो क्या ये पैक्ट से इज इट लाइक ट्राइंग कि जेन्युइनली जो सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंडेंस है दैट शुड बी रिड्यूस्ड? The bargaining power they're getting indeed. Definitely they're getting a bargaining power. And their dependence on superpowers has already been reduced. See, there are no longer times. See, in India also we are depending on Russia or USSR once upon a time. Are we dependent on USSR? No, no. We are making our own military hardware. We are dependent on, we are buying it from a lot of countries. Similarly, Pakistan used to buy its military hardware once upon a time from only America. Now it is buying from Turkey, now it is buying from other countries also, is also buying from Europe. Similarly, Saudi is also, Saudi till now, it is buying only from US, but they are also diversifying. So, first of all, no one is dependent on superpowers. And secondly, it is indeed, it is giving them bargaining power. It is financial bargain, it is a military bargain, it is a strategic bargain. In all the three dimensions. It's all about war economy. All about war economy. Tariq ji, I wanted to ask you, to what extent is this alliance shaped by concerns about Iran's growing military and regional influence? Do you think they actually fear that Iran will become too difficult to handle by any independent country See, someday? this, as I said earlier, also this is all Western narrative. If you look at Iran's history, for the last 39 years, they are facing sanctions, Yes. right? 47 years from 79. 79. हाँ, सो 40 47 ईयर्स उनका सैंक्शन चल रहा है। उससे पहले अगर आप 79 से पहले 51 तक देखें, जब मुसद्दी को डिथ्रोन किया 53 में, उस वक्त तक जो सरकार थी वो रजा शाह पहलवी के पास थी, और वहाँ की जो 80-85% जनता थी वो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन थे। उनके पास हेल्थ केयर नहीं था, उनके पास एजुकेशन नहीं था, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं थी।
सो ईरान वो सब सफ़र कर रहा है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा कोशिश है। में अभी। अभी वो कहाँ से थ्रेट होगा सऊदी अरेबिया के अरेबिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप उसको अटैक नहीं कर सकते, उनकी जियोग्राफी जैसी है, उनके यहाँ जो एक उनका जो मोराल है आप उसको नहीं तोड़ सकते। जब अमेरिका नहीं तोड़ पाया, जब इसराइल नहीं तोड़ पाया, तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की और ये कतर, यूएई, इन सब की तो खैर मतलब उस रीजन में कोई लिटरली ईरान के सामने औकात नहीं है। ये समझना उनको, इसीलिए अमेरिका वहाँ पहुँचा था, इसीलिए अमेरिकन बेसेस वहाँ बने थे। लेकिन वो जो एक बबल था अमेरिकन बेसिस का कि अमेरिका मुझे सेव कर लेगा, बचा लेगा, वो सब खत्म हो गया है। क्योंकि इसमें चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे शिया मिलिशिया हो, चाहे IRGC हो, सब ने ईरानियन जितने भी थे सब ने अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया और अमेरिकन ज्यूज एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किया जी। पूरे रीजन में। तो इसलिए सऊदी अरब को ये लगता है कि अगर ईरान बहुत मजबूत है तो कहीं मेरे लिए खतरा ना बन जाए। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। जब ईरान और इराक का वॉर हुआ था, आपको याद होगा, आफ्टर 1979, अमेरिका ने ज़ियाउल हक को बहुत परस्यू किया था कि तुम ईरान पे अटैक करो। ज़ियाउल हक ने साफ कह दिया था कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मैं अपने जो कंट्री में शिया है वो मुझे मार देंगे। तब फिर वो सद्दाम हुसैन की तरफ गया था अमेरिका कि भाई तुम अब ईरान से लड़ो। तो यूएस ने हमेशा कोशिश की है ईरान को पहले प्रॉक्सी वॉर में फंसा कर उसको कमज़ोर करना, इस पर तो खैर डायरेक्ट आया हो। लेकिन मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री इस वक्त इतने कमज़ोर होने के बाद भी ईरान के सामने नहीं खड़ा हो सकता, ये सबको पता है। इस्लामिक ग्रुपिंग की बात की जाए तो सर, पहले OIC भी एक किस्म से दे ऑल केम टुगेदर एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक सच ग्रुप्स एक्चुअली स्टिल स्ट्रगल टू survive? Do you think this will also be one of those? See, OIC is a purely political organization, or maybe some sort of economic organization, you can say. Here we are talking about the military organization. Here we are talking about the strategic organization. तो यहाँ क्या अलग होना चाहिए? यहाँ अलग What होना should be चाहिए? the different strategy? So different strategy क्या है कि यहाँ पर first of all it is only the 3 countries. It's not the entire Islamic countries who are coming up with this. How long will UAE be part of it? I don't think so. And how long Qatar, Bahrain and other countries be standing with them is a difficult question. Most of all, सबसे most important is कि how this organization will shape beyond the paper. NATO is a very, very well structured organization. NATO has got its places. NATO has got its regional chiefs. NATO has got its regional proxies. Everything is there. उनके स्टेशंस हैं. बट आप यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को लीड कौन करेगा और उस स्ट्रक्चर को फाइनेंस कौन करेगा? नाटो को मोस्ट इंपोर्टेंटली एक लार्ज स्केल पर तो अमेरिका फाइनेंस करता है। अब इसको कौन फाइनेंस करेगा, कौन इसको लीड करेगा, कौन इसको ऑपरेट करेगा और किसकी कमांड एंड कंट्रोल इसके ऊपर चलेगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए इसको हम OIC से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री including Saudi Arabia, they cannot go against America right now. Right now, that's it. Because उनका जो उनकी जो पूरी इकोनॉमी है, जो उनका पूरा एक्सपोर्ट है वो डॉलर्स पे, वो उनके US के फेडरल बैंक में है। दैट्स वाई चाइना अब सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर रशिया को लाएगा टेबल पे, और ये सब कंट्रीज पाकिस्तान और टर्की और फिर हो सकता है इसमें कतर आ जाएगा। हो सकता है एक पॉइंट के बाद UAE आ जाए, हालांकि अभी तो बहुत बहुत डाउट है, वो ऑलरेडी OPEC से बाहर हो गया है। बहुत मुमकिन है कि अब डॉलर से अलग ये लोग अपनी पैरेलल इकोनॉमी चलाने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो गर्दन है वो अमेरिका के पास है इन लोगों की, तो बहुत खुल के अभी कोई सामने इसमें आएगा नहीं, क्योंकि पूरा पैसा आपका फेडरल बैंक में है। इराक को बर्बाद करने में यही तरीका हुआ था कि जो भी ऑयल एक्सपोर्ट होता था इराक से, वो सारे पैसे फेडरल बैंक में होते थे और वहाँ से कैश लोड करके भेजते थे वो इराक, जब भी उनको ज़रूरत होती है हर महीने पे स्टाफ को सैलरी देनी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फूड है, तो इराक में जहाज़ भर भर के डॉलर्स आते थे कैश। अभी चंद साल पहले तक वो अमेरिका भेजता था, भिखारियों की तरफ वो हाथ फैलाता था इराक के, मुझे इतने डॉलर दे दो, अपने ही ऑयल के पैसे के लिए, अपने पैसे के लिए। ईरान ने क्या किया, उसमें चालाकी की कि उसे थर्ड पार्टी बनाई वहाँ पे इराक में। उनका कैश आता था डॉलर इराक में, शेल कंपनी के ज़रिए ईरान उसी पैसे को अपने यहाँ लिया। तब तो उसे सैंक्शंस को इतना कहना चाहिए बहुत स्ट्रांगली उसने झेल लिया। तो अभी अमेरिका के खिलाफ जब तक चाइना, रशिया ये सब नहीं आएंगे खुल के, तब तक ये इस्लामिक नेटो और शिया और सुन्नी नेटो इससे पेपर भी रहेगा बहुत ज़्यादा। आप ये कह रहे हैं कि अभी टर्किश प्रेसिडेंट ने और सऊदी ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि एनीबडी कैन जॉइन दिस पैक्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस।
So you don't see any country joining in. नहीं Not आएंगे। immediately. अभी तो नहीं आए, लेकिन आएंगे ज़रूर इसमें, लेकिन इसको वो शेप नहीं दे सकते जो शेप हम समझ रहे हैं अभी, कि एक इस्लामिक नेटो बन जाएगा और फिर वो अमेरिका पे दबाव डालेगा, फिर वो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को तोड़ देगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। So it will remain centered to Turkey, Pakistan, and. Majorly. As of now. So does this new Mecca agreement warrant heightened attention from India, Indian defense Not planners? now. Not now. See, as of now, it's not a threat. First of all, to India. What do you think if there is a skirmish like Operation Sindoor 2 और इंडिया कुछ अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि सऊदी आकर के अटैक करेगा? नहीं करेगा। हाँ, कोलैबोरेशन जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, टेक्निकल शेयरिंग है, मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई है, वो तो चलती रहेगी। वो ऑपरेशन सिंदूर 1 में भी थी, वो ऑपरेशन विजय के टाइम में भी थी। तो जो जितने भी अभी तक स्किर्मिश हुए हैं, जितने भी अभी तक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें टर्की तो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, सऊदी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो जो सपोर्ट था वही सपोर्ट रहेगा। जब भी पाकिस्तान फंसता है उसको बेल आउट करता है सऊदी अरेबिया। ऑपरेशन सिंदूर में टर्किश ड्रोन्स आए थे अनडाउटेडली, लेकिन इंडिया के सामने फेस टू फेस कोई नहीं आएगा, क्योंकि ना सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया से लड़े, राइट। वो भी ये कोशिश करेगा कि भाई डिप्लोमेसी के ज़रिए कुछ बातचीत का हल हो जाए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान उसको सिर्फ इसलिए यूज़ करना चाह रहा है कि उसको सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया से है। Yes. सो अभी अगर जंग होती है तो कहेगा देखिए हमारा तो बड़ा लॉस हो गया, थोड़े पैसे दे दो हमें। तो बस सिर्फ यही होगा, सिर्फ लेकिन यही उसका इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा भी है कि हम बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, बट इंडिया को के सामने कोई थ्रेट नहीं। So, sir, Saudi actually tries to balance its ties with India, and on the other hand, we have Turkey. Do you think कि हमारे international policy में there is going to be any change? Do you think this axis would somewhere affect India's wider regional role? No, not at all. See, once again, I'm telling you, you have to see this NATO, so-called alliance, in the light of a previous alliance, which was formed earlier, Islamic Military Alliance. When you see the Islamic Military Alliance and you compare it with today's this tripartite 3 countries, इन 3 countries का जो collaboration है, उससे आप उस जमाने के इस्लामिक मिलिट्री कॉपरेशन को अगर कंपेयर करेंगे, उस वक्त में ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थे, उस वक्त में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्टर था, उस वक्त में एक ऑलरेडी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेटअप हो चुका था, उसका चीफ डिसाइड हो गया था, राहिल शरीफ को वहाँ अपॉइंट कर दिया गया था। दैट वाज इन मच एडवांस स्टेज, बट दैट ऑल्सो डाइड डाउन विद द स्पैन ऑफ टाइम। सिमिलरली हेयर ऑल्सो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा और किसी को इससे थ्रेट होने की ज़रूरत है या पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, इंडिया को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, तब तक जब तक इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर सामने नहीं आएगा। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, टर्की से हमारे बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है जी, वही। अब बचता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कभी भी खुलकर इंडिया के खिलाफ नहीं आएगा। टर्की क्या करना चाह रहा है कि जो इंडिया, यूरोप और यूएई के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। बट ये सब बहुत अभी दूर की कौड़ी है, इसमें कुछ अभी फिलहाल मुझे मतलब इसका इंडिया के कोई लिए इम्पैक्ट आप रीजनली नहीं देख रहे हैं? Not as such? immediately. Not immediately, No, yes. no impact. Do you think this alliance will survive a real crisis when it happens? No. उनमें अभी वो पोटेंशियल नहीं है, सब्सटेंस नहीं है एक्चुअली, What makes you say so? बिकॉज इनमें से कोई भी सुपर पावर के सामने बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है, नीदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। टर्की को अपना बिजनेस दिखता है, दैट्स इट। हाँ, अगर इसमें सारी कंट्रीज आ जाती है, इजिप्ट भी आ जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ये सब अगर आ जाते हैं तो एक, चूँकि वो बड़े मेजर ऑयल एक्सपोर्टर हैं, वो एक प्रेशर डाल सकते हैं। बट अगर आप देखिए, अगर ये सारी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ होती भी, तब तक उन्होंने पैलेस्टाइन का क्या कर लिया, Correct. है ना। हर कंट्री कहती है 2 नेशन थियरी को मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज भी मानते हैं। बट क्या इसराइल का अग्रेशन पैलेस्टाइन के खिलाफ कम हो गया, बंद हो गया? नहीं हुआ। नहीं। 3 साल से आप गजा वॉर देख रहे हैं। अभी 15 पॉइंट्स पीस प्लान लेकर भी आए ट्रम्प, इसराइल ने मना कर दिया। जब तक मैं पीएम हूँ, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वेस्ट बैंक में, गजा में कोई पैलेस्टाइन का सेटलमेंट नहीं हो सकता, है ना। सो मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ तेल के नाम पे, अब जो उनको बिजनेस भी तो करना है ना, Correct. उनको अपना बिजनेस भी करना है, उनका जो उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो पेट्रो डॉलर पे है, तो वो खुल के किसी को ना दुश्मन बनाएंगे ना वो दुश्मन बनेंगे किसी के। इसमें एक और बात है कि हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री देखते हैं पिछले 400-500 सालों की, तो कोई भी अलायंस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया जब तक उसके साथ कोई सुपर पावर नहीं है। So that is what is lacking here. Yeah, NATO was successful because America was with them. Eastern Bloc was successful because USSR was with them. So unless there is a superpower with them, they cannot succeed. Same, I go back to the example of Israel and Gaza. Entire
Arab world was anti-Israel. They could not do anything because Israel was being supported by USA. It had superpower with us. Yes. So that is the reason. Now in this alliance, superpower support is lacking clearly. So I don't think it will survive unless a superpower joins. इसमें एक गेम चेंजर हो सकता है अगर इस अलायंस में ये किसी भी तरह से स्मार्टली ईरान को ले आए। अगर उनको एक्चुअली इस्लामिक नेटो बनाना है, कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनको वाकई इस्लामिक नेटो बनाना है और अगर वो चाहते हैं कि इस्लामिक नेटो बने, सो दे कैन नॉट गेट अवे विद शिया पावर और शिया डिटरेंस। Not only that, it's a strategic location of Iran. So- Iran is very, very strategically located. Yes. सो अगर ईरान को उन्होंने किसी भी तरह से इस अलायंस में शामिल कर लिया, देन दिस अलायंस विल Definitely बिकम become अ सुपर पावर। ये तय है, क्योंकि ईरान जैसे इस गुट में आएगा, सबसे पहले इजराइल आइसोलेट होगा। और अगर इजराइल आइसोलेट होगा, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मिडल ईस्ट को, सऊदी अरेबिया को छोड़ करके वो आइसोलेट हो, बिकॉज उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल डॉलर पे चल रही है। तो ये गेम चेंजर हो सकता है अगर ईरान आता है इसमें। तो I strongly feel, is my personal opinion, that like the earlier Islamic military alliance, this so-called Islamic NATO will also die its own death. America will not let it survive. That's my opinion. we have seen ISIS, we have seen Bashar al-Assad, we have seen Al-Qaeda. So अभी इसमें जब, जैसा मैंने पहले कहा, अगर ईरान आता है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये I'm not hopeful. Otherwise, it will stay to only these three On paper, countries. That is it. Well, on that note, thank you so much, sir, for joining us. Thank you, sir, Thank for you. joining us. It was an interesting conversation. Please keep watching DNA. Thank you.